Hello everyone, hope you all are doing great. My name is Mandeep Kaur. I'm an assistant professor in Access Colleges. I'm here to discuss about a course, Business Statistics. Now, this course, Business Statistics, we teach in BBA first semester. The code of the course is F010102TA. In BBA, we have three papers, and each paper is comprising of two subjects. Now, this 2T means this is a second paper, and this A means the first subject. So, business statistics is the first subject in the second paper. Now, the course is affiliated under CSJM University. Before proceeding further, let us understand what is business statistics. Now, business statistics is comprising of two words, business and statistics. The core word here is statistics. What is statistics? There are many definitions related to statistics given by different persons. So, in the layman language, if we discuss, statistics is the branch of mathematics, obviously. It is a branch of mathematics, and what does it do? It deals with the data. Now, how it deals with the data, that we'll discuss later. So, what is statistics? It is a branch of mathematics that deals with the data. And business statistics means the application of statistics in business, means in different processes of business, in different fields of business, when we use statistics, then this is known as business statistics. Now, next, scope. Before studying any subject, the question comes in our mind is क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ही इसका यूज है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स थिंग. सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मीन्स हम इस स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस में क्या स्कोप है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. हियर आई हैव टेकन जस्ट टू एग्जांपल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग. So let us first discuss about प्रोडक्शन प्लानिंग. प्रोडक्शन प्लानिंग मीन्स हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करना है, सो बिफोर दैट वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान कि व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन. वी हैव टू answer all these questions before producing any product. So production planning comprises of all these steps, as you can see here. The first one is analyzing demand. तो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले वी शुड नो कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. बिकॉज अगर हमें डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट नहीं पता होगा, इफ वी आर नॉट नोइंग कि प्रोडक्ट हमें कितना प्रोड्यूस करना है, तो अननेसेसरली वी विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, जिससे हमारा टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा. सो फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसमें हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर सकते हैं? इसमें हम सर्वेस के थ्रू डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं. इन द सर्वेज देयर विल बी डिफरेंट क्वेश्चन आयर, जिसे हम वाया सोशल मीडियाज अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग कैपेसिटी एंड टाइमलाइन. कैपेसिटी एंड टाइमलाइन मीन्स हमें कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एंड इन व्हाट टाइम पीरियड. In this we use the forecasting method. The next is evaluating raw material. Raw material means the basic things required to produce a product. तो हमें raw materials को collect करना है, और उसको collect करने के लिए we need the information कि हमें वो raw materials कहाँ से मिलेगा, and that collecting the information is the part of our statistics. Next is production quality. अब आपने raw materials collect कर लिया, product produce कर दिया. Now before getting introduced the product in the market, we need to check the quality of the product. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को चेक करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट क्वालिटी चार्ट्स का यूज होता है. Okay, and there is a method called standard deviation that is also used in the checking of the production quality. Next, improvement of production system. Now, depending upon the production quality, we will identify कि हमें अपने प्रोडक्शन को, हमने अपने प्रोडक्ट को कितना और इम्प्रूव करना है. हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है, हाउ वी हैव प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, हमें उसे कैसे इम्प्रूव करना है, or there is a scope for improvement or not. That depends upon the quality of the product we have checked. Now after this हमारा product final तैयार हो जाएगा बन के, and we can introduce that in the market. So this is how we use statistics in different steps of production planning. Now next, coming to the marketing.
अब आपने अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया है, अब हमें उसे इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वी नो दैट द मार्केटिंग इज़ द मेजर स्टेप कि हमारा प्रोडक्ट कितना लोगों तक पहुँच पाएगा। सो व्हाट वी डू इन मार्केटिंग, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स वी कैन यूज़ इन मार्केटिंग टू गेट द मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट की पोटेंशियल क्या है, where we can target our customers. This is how we can in this we can use the statistics. Okay. Now advertising, marketing में advertising आती है, तो advertising हमें अपने product की करनी है। तो what we do in advertising is हम before advertising हम data collect कर सकते हैं regarding our product, and after advertising also we can collect the data or which is opinion of the customers regarding our product. Now we can compare these two datas and can check whether there is a shift in the opinion of the customers which can help us in the marketing of our product. So in this comparison also and collecting the data, collecting the opinions of the customers, हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द वेटेज ऑफ द स्कोर्स। नाउ व्हाट इज द वेटेज ऑफ द स्कोर्स? This course comprises of 3 credits, and and the maximum marks is of 100, which is bifurcated in 2 parts. First is 75 and 25. 75 is your major course and the 25 is of practical. 75 क्या है आपका theory part है और 25 आपको internal marks दिए जाएंगे, and total it will be of 100 marks. Now, next, let us discuss what's there in our course. We have 4 units. Unit 1, 2, 3 comes under descriptive statistics, and Unit 4, it comes under inferential statistics. Now, what is descriptive statistics and inferential statistics? Descriptive statistics क्या करता है? वो जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसे समराइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और हमें एक समराइज्ड वैल्यू प्रोवाइड करता है विच कैन रिप्रेजेंट द होल डेटा सेट। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में देयर आर 2 terms वी यूज, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन मीन्स जो हम टारगेट पॉपुलेशन है, हम जिसको स्टडी करना चाहते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 डेटा सेट्स आर देयर, डेटा पॉइंट्स आर देयर इन आवर पॉपुलेशन, तो हम उसमें से कुछ डेटा पॉइंट्स को चूज कर लेते हैं, लाइक 100 और 50, और जो भी हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, वी डू ऑन दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द सेट, एंड दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द सेट इज नोन एज सैम्पल साइज। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं दैट वी डू ऑन अ सैम्पल, और उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम जनरलाइज करते हैं फॉर द पॉपुलेशन, उसे हम इन्फर करते हैं फॉर द पॉपुलेशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो यूनिट 1, 2 एंड 3 है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट अस सी। यूनिट 1 में 3 पार्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। कॉन्सेप्ट्स में विल स्टडी कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, what is the history of statistics, how this word is derived, that will study in the concept. Next, significance of statistics. Significance means how statistics is important, why do we need to study statistics, like how can statistics and economics are related, how statistics in medical sciences are related, how statistics in business are related. So in the significance we study the scope of statistics in different fields. Next is limitations. Limitations means where we cannot use statistics. Although statistics we use in different fields, but still there are some limitations of statistics. Like statistics quantitative data से deal करता है, but qualitative data से deal नहीं करता है. Statistics homogeneous data से deal करता है, but heterogeneous data से deal नहीं करता है. So these are the limitations of statistics. Next, data. Yes, we discussed about the data initially also कि statistics deals with the data. अब कैसे statistics data से deal करता है? Data क्या है? Data is whatever the information we collect for our experiment, that is the data. That is raw material हम collect करते हैं अपने product के लिए, that is called data in statistics. तो कोई भी हमें experiment करना है, कोई भी हमें survey करना है, तो उसके लिए जो भी हम information collect कर रहे हैं,
दैट इज नोन एज डेटा। अब इस डेटा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डेटा में वी विल डिस्कस टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। और सोर्सेज कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ डेटा, कि हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। हम फोन यूज करते हैं, दैट इज वी आर क्रिएटिंग द डेटा इन दैट। फोन्स में हमारे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, दैट इज द डेटा। वी आर यूजिंग द यूट्यूब, जब भी हम वीडियो यूज करते हैं तो हम उसे लाइक कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हाउ मेनी लाइक्स अ वीडियो इज गेटिंग, दैट इज अ डेटा। हाउ मेनी सब्सक्राइबर channel is having, that is a data. So and these are the sources from we collect the data. So we'll study with different sources कि हम primary data कहाँ से collect कर सकते हैं, secondary data कहाँ से collect कर सकते हैं. Next, classification. After collecting the data, जो हमने data collect किया, that is very random. जो भी हमने डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो बहुत रैंडम होती है। अब हमें क्या करना है, उन्हें एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है, मीन्स हम उन्हें ग्रुप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, तो स्टूडेंट्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बेस्ड अपॉन द जेंडर। तो दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन इज, कि जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है अब हमें उन्हें ग्रुप करना है अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, टैबुलेशन। अब आपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया इन डिफरेंट ग्रुप्स, अब आपको उसे रिप्रेजेंट भी करना है, सो दैट हम जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसे हाईलाइट्स कर सकें। ठीक है, हमारा डेटा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो, सो दैट इट विल बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डेटा। तो टैबुलेशन में क्या होता है, हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वाया डिफरेंट वेरियस मीन्स। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, कोई भी डेटा सेट या कोई भी डेटा पॉइंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमने जो डेटा कलेक्ट किया, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया, अब हमें क्या करना होता है, उसे रिप्रेजेंट भी करना होता है। एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द डेटास, एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ दीज रिप्रेजेंटेशंस। बायोग्राफ्स हमने सब स्कूल में पढ़ा है। बायोग्राफ क्या होता है? बायोग्राफ डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बायोग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट बार्स होते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या होते हैं? हिस्टोग्राम में भी बार्स होते हैं, बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स। बायोग्राफ में स्पेस होती है दो बार्स के बीच में, बट हिस्टोग्राम में देयर इज नो स्पेस। तो द हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉन्टिन्यूअस डेटा। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट भी हमने पढ़ा है, दैट इज अ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। एक सर्कल होता है जिसमें पाइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो दैट इज पाई चार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, डेटा सोर्सेज। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम डेटा के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। डेटा टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो ऑब्वियसली देयर आर वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग दोज डेटाज, वेरियस सोर्सेज। तो प्राइमरी डेटाज को भी कलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटाज को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? सी दे आर द OTT प्लेटफॉर्म्स। वोट, जब हम लोग वोटिंग सिस्टम होता है तो हम वोट देते हैं, तो जो हम वोट दे रहे हैं दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग द डेटा, वो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप फोन यूज करते हैं, all the digital ways, there are many digital ways where we can find as the sources of data. Primary data like जो इनिशियल, जो फ्रेश डेटाज होते हैं, जो हम सर्वेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटाज वो होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। सेकेंडरी डेटा जैसे अगर हम मैगजीन रीड करें, तो मैगजीन से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, दैट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। द इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, बस हम उसे रीड कर रहे हैं। वेबसाइट्स में हम इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। So there are various sources of secondary data and primary data. Next, Unit 2. Unit 2 में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? Unit 2 is classified into 3 parts: measure of central tendency, measure of variation, and shape of data. Now, measure of central tendency. Measure of central tendency means जो भी हमारा डेटा होगा, डेटा सेट होगा, उसे हमें एक सिंगल वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं, वी समराइज आवर डेटा विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वैल्यू, जो हमारे पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टूल्स क्या हैं? मीन, मीडियन एंड मोड। ये सब हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा है कि व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वेरिएशन।
अब जहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फेल होता है, देयर वी नीड टू यूज द मेजर ऑफ वेरिएशन. मेजर ऑफ वेरिएशन मीन्स कि जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं इन अ डेटा सेट, वो व्हाट आर द उन डेटा पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, या फिर हम एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ वी हैव कैलकुलेटेड द मीन ऑफ द डेटा. ठीक है, हमने मीन कैलकुलेट किया डेटा का, अब बाकी के डेटा पॉइंट्स हमारे मीन से कितने डिस्टेंस पे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स एंड द मीन ऑफ द डेटा. तो दैट इज वी स्टडी इन द मेजर ऑफ वेरिएशन कि हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस? मेजर ऑफ वेरिएशन से हम कंपैरिजन करते हैं, डेटा जितना स्कैटर्ड होता है उतना कम वैल्यूएबल होता है, और डेटा जितना अनस्कैटर्ड होता है दैट इज मोर वैल्यूएबल डेटा. तो हम इससे कंपेयर करते हैं कि हमारा डेटा कितना वैल्यूएबल है, कौन सा डेटा सेट इज मोर यूजफुल एंड विच डेटा सेट इज नॉट मच यूजफुल. Next is, and there are obviously the various tools we use for measure of variation like range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Next, shape of the data. Shape of the data is measure of skewness and kurtosis. Skewness में हम क्या चेक करते हैं? Skewness में हम ये चेक करते हैं कि हमारा डेटा कितना scattered है from the symmetrical distribution. हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Symmetrical distribution means कि both side of a margin data is equally distributed, like this one. This is a graph. Okay. Now about this line, data is equally distributed. The number of data points, right to this line and the number of data points left to this line are equal. So this is symmetrical distribution. And the asymmetrical distribution is अगर हमारा data symmetric ना होके एक side ज़्यादा shift होगा, that is known as asymmetrical distribution. तो हमारा डेटा कितना शिफ्ट है towards the right or towards the left, that we study in measure of skewness. That is known as skewed data. जब हमारा डेटा asymmetric हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं skewed. Next is kurtosis. Kurtosis में क्या करते हैं? Like this is symmetric distribution. ये एक normal height है of the distribution. Kurtosis में हम ये check करते हैं कि हमारा डेटा इस height से, normal height से कितना ज़्यादा peaked है या कितना less peaked है. That we checked in the measure of kurtosis. So these comes under the shape of the data. Shape of the data means जब हमारे पास data set होता है तो हम उसको graph के through plot करते हैं, तो वो कैसी shape provide कर रहा है, that is measure of skewness and kurtosis. Next unit is unit 3. Unit 3 is correlation and regression. Now what is correlation? Correlation means the relation between the commodities. In this we study how two commodities are related to each other via different methods, and one of them is scatter diagram and the another one is using this Pearson's coefficient of correlation. तो ये दोनों यूज करके हम क्या स्टडी करते हैं? द रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज, कितना हाउ दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड और वीकली रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है, एंड डे बाय डे यू आर इंक्रीजिंग योर एडवर्टाइजिंग अमाउंट, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. तो उसके पैरेलली हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. अगर एडवर्टाइजिंग अमाउंट इंक्रीज होने के साथ आपका सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स द टू कमोडिटीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. बट अगर एडवर्टाइजिंग अमाउंट के साथ सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स द टू commodities are obviously still now related, but they are negatively correlated because एक amount increase हो, एक commodity का amount increase हो रहा है, और another one is decreasing. So via the scatter diagram we can see how two commodities are related to each other. ये जो upgoing line है that is positively correlated. All these are positively correlated. कुछ strong है, कुछ weak correlations हैं, and this one, this is scattered. So that means there is no correlation. Two commodities जिनका भी हमने ये graph scatter diagram plot किया है, they are not related to each other. And here the three diagrams are showing the downward slope. That means these three are negatively correlated. That means if one commodity is getting increased, another one is getting decreased. And this can be identified with the help of the correlation coefficient, जिसका ये formula है.
R is the symbol to represent correlation coefficient. अगर R की values ज़्यादा है, that means the commodities are strongly correlated. अगर R की value कम है, तो commodities are less correlated or weakly correlated. Okay. Now, ये तो कोरिलेशन हो गया. नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन प्रोवाइड्स यू अ मॉडल और इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन कि हाउ टू कमोडिटीज आर रिलेटेड. ये भी कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन. y इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ी है इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हमने पढ़ी है. तो सिमिलरली हियर देयर आर टू रिलेशन, y and x are the one is independent variable and one is dependent variable. These are representing the two commodities. ठीक है, that is, अगर ये एडवर्टाइजिंग अमाउंट है तो ये सेल्स वॉल्यूम है. अगर आप एडवर्टाइजिंग अमाउंट इंक्रीज करें तो हाउ सेल्स वॉल्यूम इज गेटिंग अफेक्टेड, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन. तो रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन जो भी दो कमोडिटीज के बीच में रिलेशन होता है उसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. So y is dependent variable and another one is independent variable. Similarly, another equation is there. X is equals to a plus by. Here x is dependent variable and y is independent variable. So correlation क्या बताता है? Correlation ये बताता है कि how two commodities are related, and regression उसी relation को equation के form में represent करता है. Now the next and the last unit is unit 4. Unit 4 again comprises of two parts. First one is probability and the next one is sampling. Probability हम सबने पढ़ी है थोड़ी बहुत, ठीक है. Probability क्या होती है? Probability means किसी भी चीज के होने या ना होने की क्या संभावना है. फॉर एग्जाम्पल, हम जब क्लाउडी वेदर देखते हैं तो हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है. देयर आर 20% चांसेस, देयर आर 50% चांसेस कि हाँ आज बारिश होगी. दैट इज प्रोबेबिलिटी. 50% चांस है आज बारिश होगी. तो किसी भी चीज के होने या ना होने की जो संभावना है, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट. एंड नेक्स्ट इज सैम्पलिंग, दैट विल डिस्कस लेटर. प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी में हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इवेंट्स क्या होती हैं? इवेंट्स होती हैं हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डाइस थ्रो किया. अब डाइस में थ्रो करते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 1 to 6 नंबर्स आ सकते हैं. तो देयर आर 6 इवेंट्स. उसमें इवेंट्स क्या हो सकती है? एक इवेंट हो सकती है कि डाइस थ्रो करने पे 1 अपीयर हुआ, 2 अपीयर हुआ, 3 अपीयर हुआ. लाइकवाइज देयर आर 6 इवेंट्स इन दैट. तो इवेंट्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स. तो हम प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉस. different situations में how can we calculate probability using different laws. नेक्स्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम किसी भी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन वन इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार्ड्स, ठीक है. आपने हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 ऑफ अ ब्लैक कार्ड. आपको क्या करना है कि जो ब्लैक कार्ड है उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 नंबर की. तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? 3 की, व्हेन ऑलरेडी अ ब्लैक कार्ड हैज बीन ड्रॉन. सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि आप एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड. नेक्स्ट, बेस थ्योरम. बेस थ्योरम इज द एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसमें हम बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट. ओके. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया. कॉइन हमने एक बार टॉस किया तो जो हमारा हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और जो टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. ओके. किसी कॉइन को अगर आप 2 टाइम्स टॉस करेंगे, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल? ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 टाइम्स, ओके, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अगर हम इस कॉइन को 2000 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, देन व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड?
ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और बहुत ही बेसिक है, बहुत डीप में नहीं पढ़ते हैं, जस्ट अ बेसिक थिंग इज देयर इन योर कोर्स। Now this is all about probability. Now the next is sampling. हमने सैम्पल के बारे में डिस्कस किया था इन द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैम्पल क्या होते हैं? सैम्पल इज द पार्ट और अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब अगर हमें 1000 डेटा पॉइंट्स को स्टडी करना है तो उससे बेहतर क्या है, हमने उसमें से एक सबसेट चूज कर लिया ऑफ 100 डेटा पॉइंट्स, हम उनको स्टडी करेंगे। वॉट एवर द रिजल्ट वी गेट वी जनरलाइज इट फॉर द 1000। तो सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग में देर आर व्हाट वी स्टडी इज फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग कि जो हमें सैंपल चूज करने हैं उसके क्या क्या वेरियस वेज हो सकते हैं, हाउ कैन वी चूज अ सैंपल। तो इसमें हम 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ सैम्पलिंग होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब कोई भी काम करते हैं देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग एरर्स, राइट? तो सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं? सैम्पलिंग एरर्स मतलब जो भी आपने सैंपल चूज किया है वो आपके पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, परफेक्टली रिप्रेजेंट अगर नहीं कर रहा है देन इट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। ओके, एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर तब अकर होते, दैट इज अ ह्यूमन एरर, कि आप जब सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे कोई एरर हो जाए, दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। ओके, कि आपको आप ऑब्जर्वेशन सैंपल कलेक्ट करते वक्त आइडेंटिफिकेशन में कोई एरर हो गया, ऑब्जर्वेशन में कोई एरर हो गया, दैट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ हाइपोथेसिस क्या होता है? हम कुछ एज्यूम करते हैं एक स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया कि इन अ क्लास 60% of student will get pass in business statistics. This is our assumption कि 60% student pass हो जाएंगे. Now we need to test. This is our assumption. So this assumption is hypothesis. Now we need to test this hypothesis कि this will actually be true or not true. तो उसे टेस्ट करने के लिए जो भी टूल्स यूज करते हैं that comes under test of hypothesis. अब हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस डिस्कस किया। अब टाइप 1 और टाइप 2 एरर। अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के टाइम ही जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो अगेन देयर आर चांसेस टू गेट एरर्स। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर ये होता है कि हमने जो एजम्पशन लिया है दैट इज ट्रू बट मिस्टेकनली वी हैव मेड इट फॉल्स। ठीक है, तो वो हो गया टाइप 1 एरर कि जो उसका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आया उसमें ये आया कि जो हमने assumption लिया था दैट इज नॉट ट्रू बट एक्चुअली इट इज ट्रू, दैट इज टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर मींस द assumption इज फॉल्स बट वी फेल टू रिजेक्ट दैट assumption। हम टाइप 1 एरर क्या होता है? हमने ट्रू assumption को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया, लेकिन टाइप 2 एरर में हम फॉल्स assumption को फॉल्स डिक्लेयर नहीं कर पाए, दैट इज टाइप 2 एरर। नाउ द नेक्स्ट इज लार्ज सैंपल टेस्ट। ऑब्वियसली सैंपल्स को टेस्ट करना है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में, तो उसके लिए देयर आर वेरियस टेस्ट, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वी यूज। बट लार्ज सैंपल टेस्ट क्या होते हैं? स्मॉल सैंपल मीन्स अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से लेस है, दैट इज स्मॉल सैंपल। बट इफ योर सैंपल साइज इज मोर देन 30, दैट कम्स अंडर लार्ज सैंपल। तो फिर आप उसके लिए डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं। तो मेजर इन दिस कोर्स यू विल स्टडी अबाउट द Z टेस्ट ओनली। ओके, नाउ द लास्ट ऑफ दिस इज इंट्रोडक्शन टू MS Excel एंड इट्स यूज इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या कर रहे हैं कि MS Excel पे हम कैसे ये जो भी टूल्स हैं इनको यूज कर सकते हैं, कैसे हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं in MS Excel, that we'll study in this part. So this is all about this course, Business Statistics. I hope you have understood it. And so next is conclusion. So what we conclude, इतना समझने के बाद क्या conclude किया कि statistics है क्या? Statistics क्या है? Branch of mathematics as we have discussed earlier. क्या करता है? Deals with the collection data, data को collect करेगा, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेगा, क्लासिफाई करेगा,
फिर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। प्रेजेंट कैसे करेगा, हमने पढ़ा, चार्ट्स के फॉर्म में, बार ग्राफ्स के फॉर्म में, तो उसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइजिंग के टूल्स क्या है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स उसे जनरलाइज करेगा फॉर द पॉपुलेशन, इंटरप्रेट करेगा व्हाट रिजल्ट व्हाट आर देयर ऑफ द डेटा टू असिस्ट इन मेकिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन। ये सारे स्टेप्स करने के बाद वी कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन अबाउट कि हमें वट एवर एक्सपेरिमेंट वी हैव परफॉर्म्ड इज वैलिड और नॉट, कि हमें आगे क्या डिसीजंस लेना है। ओके, so this is again collection, organization, presentation, analysis and interpretation. These are the parts of the statistics or the steps we use while dealing with the data. Okay, so this is all about this course. Hope you have understood it. Thank you.